वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले हदीस के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا بتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمام وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام ويا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا بتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وما بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفجر فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل
वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या अलीयुल आला यक़रउका अस्सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा खलक़्तु समा मबनियतन वला अर्ज़न मदहिया वला क़मरन मुनीरन वला शम्सन मुज़िया वला फ़ल्कन यदूरु वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व महब्बतिकुम क़द अज़िना ली अन अदख़ुला मअकुम फ़हल तअज़ुनु ली या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाहि व अलैकुमुस्सलाम या अमीन वह्यिल्लाह इन्नहु नाम कद अज़िनतु लका फ़दख़ल जिब्राईल मअना तहतल किसा फ़क़ाल लि अबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूल इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युतह्हिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। फ़क़ाल अली लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा लिल-जुलूसि हाज़ा तहतल किसाइ मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाह फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ी जम्अ मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना इल्ला मन नज़लत अलैहिमुर रहमा व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइका वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना व फ़ाज़ शिय्यतुना रब्बिल काबा फ़क़ाल अबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुन हाज़ा फ़ी महफ़िल मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ व फ़ी जम्अ मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़रजल्लाहु हम्मा वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु गम्मा वला तालिबुन हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतह फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़ा वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतुना फ़ाज़ व सुइदु फ़िद दुनिया वल आखिरति व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि बिनते खातून जन्नत बिनते अली है ज़ैनब बिनते खातून जन्नत बिनते अली है ज़ैनब गुलिस्तान फ़ातिमा ज़हरा की कली है ज़ैनब कभी ज़हरा कभी हैदर कभी आगोश नबी गोया कुरआन की गोदी में पली है ज़ैनब। जब भी ये नाम लिया टल गई हर एक मुश्किल जब भी ये नाम लिया टल गई हर एक ये मुश्किल ये तेरा नाम है या नादे अली है ज़ैनब। सल्लल्लाहु पर मोहम्मद वाले मोहम्मद वाह सल्ले अला मोहम्मद। हैदर कभी बनी कभी शब्बीर है ज़ैनब हैदर कभी बनी कभी शब्बीर है ज़ैनब। कुरआन अगर हुसैन तो तफसीर है ज़ैनब। हिफ्ज़ व अमा की दी पे जंजीर है ज़ैनब। बाद हुसैन नाना की सफ़ीर है ज़ैनब। बेतेग लड़के अब्बास अलमदार बन गई और लहजे में आज हैदर कर्रार बन गई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वाले। एक छोटी सी बन कर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। मिट गए बाजू काटने वाले अब भी फरेरा बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम नहर पे रोज़ा बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम नहर पे रोज़ा बाकी है। आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है। आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है। नजर अबू तालिब का जब तक एक भी बच्चा बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम नहर पे रोज़ा बाकी है। बैअत को जो हाथ बढ़े थे उनकी निशानी कोई नहीं। बैअत को जो हाथ बढ़े थे उनकी निशानी कोई नहीं। परचम में अब्बास के लेकिन अब भी पंजा बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम नहर पे रोज़ा बाकी है। खून बहाकर मातम में हम दुनिया को बतलाते हैं। खून बहाकर मातम में हम दुनिया को बतलाते हैं। करबो बला से अब भी हमारा खून का रिश्ता बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम नहर पे रोज़ा बाकी है।
शय के अज़ा खाने में तुम भी मिसले फितरुस आ जाओ, शय के अज़ा खाने में तुम भी मिसले फितरुस आ जाओ, दिल की मुरादे ले जाओ, बेशीर का झूला बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोज़ा बाकी है। जिसका जी चाहे वो भर ले अपनी मुरादों के कूज़े, जिसका जी चाहे वो भर ले अपनी मुरादों के कूज़े, मिट गए तीर चलाने वाले, मशके सकीना बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोज़ा बाकी है। सारे दरिया सूख ही जाते तिश्ना लबी के शोलों से, सारे दरिया सूख ही जाते तिश्ना लबी के शोलों से, सिर्फ अरीजों का सदका है आज जो दरिया बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोज़ा बाकी है। लेके कोई अब्बास का परचम गैब से आने वाला है, लेके कोई अब्बास का परचम गैब से आने वाला है, यानी जंग करबला का आखिरी हमला बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोज़ा बाकी है। लहराता है सुर्ख फरेरा तिश्ना दहन के रोज़े पर, लहराता है सुर्ख फरेरा तिश्ना दहन के रोज़े पर, सुर्ख फरेरे का मतलब है खून का बदला बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोज़ा बाकी है। मक्ता पेश में फ़क्री और सुबैयब ये पैगाम सुना दो दुनिया को, फ़क्री और सुबैयब ये पैगाम सुना दो दुनिया को, थक गए मातम रोकने वाले, मातम शय का बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोज़ा बाकी है। मिट गए बाजू काटने वाले, मिट गए बाजू काटने वाले, अब भी फरेरा बाकी है। ऊंचा है अब्बास का परचम, नहर पे रोज़ा बाकी है। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। बारह दीगर सलवात। एक कसीदा इमाम हुसैन के हुजूर में। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूं, तमाम हस्तियों की जिनकी आज विलादत है। कलम ने सीखा है ये वजीफ़ा, दुआ से पहले हुसैन लिखना। कलम ने सीखा है ये वजीफ़ा, दुआ से पहले हुसैन लिखना। मेरे अजीज़ों कफन पे मेरे, क़ज़ा से पहले हुसैन लिखना। मेरे अजीज़ों कफन पे मेरे, क़ज़ा से पहले हुसैन लिखना। कभी जो ज़िक्र वफ़ाए गाज़ी करो तो ताकीद है हमारी, कभी जो ज़िक्र वफ़ाए गाज़ी करो तो ताकीद है हमारी। वफ़ा के पैकर के तस्करे, वफ़ा के पैकर के तस्करे में वफ़ा से पहले हुसैन लिखना। वफ़ा के पैकर के तस्करे में वफ़ा से पहले हुसैन लिखना। अगर मर्ज़ में कर्ब व बला की मट्टी मलो, बदन पर शिफा मिलेगी। मर्ज़ में कर्ब व बला की मट्टी मिलो, बदन पर शफा मिलेगी। मगर ये एक शर्त है, बदन पर दवा से पहले हुसैन लिखना। मगर ये एक शर्त है, बदन पर दवा से पहले हुसैन लिखना। सादत हज कभी जो पाओ, सादत हज कभी जो पाओ, सर अपना सजदे में तुम झुकाओ। जो रस्म कुर्बान अदा करो तो मिना से पहले हुसैन लिखना। जो रस्म कुर्बान अदा करो तो मिना से पहले हुसैन लिखना। हिलाले माह अज़ा जो देखो तो ऐसे तजदीद गम अदा हो। हिलाले माह अज़ा जो देखो तो ऐसे तजदीद गम अदा हो। सजा के आंखों में खून के आंसू,
सजा के आंखों में खून के आंसू, अज़ा से पहले हुसैन लिखना। अलम घरों पर सजाने वालों, हुसैनी लश्कर के बावफा का। अलम घरों पर सजाने वालों, हुसैनी लश्कर के बावफा का। अलम पे मशकीज़ा बांध कर तुम, बुका से पहले हुसैन लिखना। अलम पे मशकीज़ा बांध कर तुम, बुका से पहले हुसैन लिखना। यही तकाज़ाए ज़िंदगी है, हुसैन मेराज बंदगी है। यही तकाज़ाए ज़िंदगी है, हुसैन मेराज बंदगी है। कभी हदीस किस्सा जो पढ़ना, किस्सा से पहले हुसैन लिखना। कभी हदीस किस्सा जो पढ़ना, किस्सा से पहले हुसैन लिखना। नमाज बोली, अजान बोली, किसी की कट कर ज़बान बोली। नमाज बोली, अजान बोली, किसी की कट कर ज़बान बोली। सदा लगाओ अली अली की, सदा से पहले हुसैन लिखना। सदा लगाओ अली अली की, सदा से पहले हुसैन लिखना। हर इब्तिदा इंतहा से पहले, ज़हूर आब व हवा से पहले। हर इब्तिदा इंतहा से पहले, ज़हूर आब व हवा से पहले। खुदा की मर्ज़ी यही है मेरी, मेरी सना से पहले हुसैन लिखना। खुदा की मर्ज़ी यही है मेरी, सना से पहले हुसैन लिखना। मदद अली से तलब करो, जब अरीज़ा लिखने का कसद हो। जब मदद अली से तलब करो, जब अरीज़ा लिखने का कसद हो। जब अरीज़ा लिख कर पता लिखो, अरीज़ा लिख कर पता लिखो। जब पते से पहले हुसैन लिखना। ये माना रेहान, रेहान आज़मी हो, सुतून शहर सुखनवरी हो। ये माना रेहान आज़मी हो, सुतून शहर सुखनवरी हो। करो अदा हक के मनकबत, जब अदा से पहले हुसैन लिखना। यही तकाज़ा है ज़िंदगी है, हुसैन मेराज बंदगी है। कभी हदीस किस्सा जो पढ़ना, किस्सा से पहले हुसैन लिखना। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब उस्ताद असगर साहब से को तशरीफ़ लाएँ। बराए खुशनुदिये मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरज। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बारे दीगर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बुलंद तरीन सलवात, बुलंद तरीन सलवात। एक कथा है, पेश कर रहा हूँ, गाजी अब्बास का है। बुलंद तरीन सलवात। इश्क़ अब्बास जो एक बार असर करता है। इश्क़ अब्बास जो एक बार
और असर करता है, फिर लहू बन के वो नस्लों में सफर करता है, फिर लहू बन के वो नस्लों में सफर करता है। मैं तो परचम को सुनाता हूँ मनक़बत अपनी, मैं तो परचम को सुनाता हूँ मनक़बत अपनी। कौन अब्बास को ना जाने खबर करता है, कौन अब्बास को ना जाने खबर करता है। इश्क़ अब्बास जो सलवा बुलंद सलवा बीबी ज़ैनब के सलामुल्लाह का मनक़बा दिए मैं पेश कर रहा हूँ। बुलंद सलवा। आज मातम जो आम है ज़ैनब, 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 तेरे खुतबों का काम है ज़ैनब, आज मातम जो आम है ज़ैनब, आज मातम जो आम है ज़ैनब। तेरी चौखट पे सर झुकाने से, तेरी चौखट पे सर झुकाने से हुरलैहि सलाम है ज़ैनब, आज मातम जो आम 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 है ज़ैनब, तेरे खुतबों का काम है ज़ैनब, आज मातम जो आम है ज़ैनब, आज मातम जो आम है ज़ैनब। हर सिफत याद रखे हैदर ने, हर सिफत याद रखे हैदर ने, फिर जो रखा वो नाम है ज़ैनब, आज मातम जो आम है ज़ैनब, आज मातम जो आम है ज़ैनब। तेरे बाबा का
जिक्र न हो, तेरे बाबा का जिसमें जिक्र न हो, वो इबादत हराम है ज़ैनब। आज मातम या अली, आज मातम जो आम है ज़ैनब, आज मातम जो आम है ज़ैनब। जिसमें ले जा अली का शामिल है, जिसमें ले जा अली का शामिल है, वो मुजासम कलाम है ज़ैनब। आज मातम जो आम है ज़ैनब, आज मातम जो आम है ज़ैनब। तुझसे आगे चले तो कैसे चले, तुझसे आगे चले तो कैसे चले, वक्त तेरा गुलाम है ज़ैनब। आज मातम जो आम है ज़ैनब, आज मातम जो आम है ज़ैनब। फाताए कर बाला का कहना है, फाताए कर बाला का कहना है, फाताए मुल्क के शाम है ज़ैनब। आज मातम जो आम है ज़ैनब, आज मातम जो आम है ज़ैनब। कर दे अकबर पे सरसरी सी नजर, कर दे अकबर पे सरसरी सी नजर, तेरा अदना गुलाम है ज़ैनब। आज मातम जो आम है ज़ैनब, आज मातम जो आम है ज़ैनब। सलवात। अब मैं दरख्वास्त करूंगा जनाब डॉक्टर सखावत हुसैन किबला से तशरीफ लाएं और जश्न शुरू करें। सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लि अहलित तक़वा वल यक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना शफीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना व हबीबे क़ुलूबना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन
अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा मौलूदी शहर शाबान वला सियमा इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबे मक़दमिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वल्लानतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह रजबुन शहरुल्लाह व शअबानु शहरी। सलाम। काबिल कदर सादात मोमिनीन मोमिनात, सबसे पहले तो मैं आज की बड़ी शब यानी गुर्रतु शाबान, पहली शब शाबान के महीने की है, इस महीने की और शब की मुबारकबाद पेश करता हूँ। शाबान वो वाहिद महीना है कि जिसमें कोई शहादत नहीं, कोई गम की तारीख इस महीने में नहीं। ये सारा महीना ही जश्न है। ये मोहम्मद व आले मोहम्मद की खुशी का महीना। काबिल मुबारकबाद हैं रफ़त मिर्ज़ा साहब, सुहेल मिर्ज़ा, सलीम मिर्ज़ा, मिर्ज़ा फैमिली, जिन्होंने आज 8 हस्तियों का, वैसे तो 6 का रखा है इन्होंने, मैं पूरा बता दूं कि टोटल जो ईदें हैं वो इस शाबान में 8 है। 6 का जिक्र आ जाएगा और 2 का जिक्र फिर मौलाना जब आएंगे वसीम अब्बास नीमा शाबान में, तो 2 का उस वक्त आ जाएगा। तो आज जिक्र होगा 6 हस्तियों का जश्न शाबान के नाम से। पहले दिन विलादत है सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की, और सैयदा ज़ैनब वो हस्ती हैं कि जो अली जैसे बाप की जीनत है। ये जीनत ये होती है जैसे आप आज ये डॉक्टर अंदलीब वगैरह ने बाकायदा इस इमाम बारगाह को नए सिरे से फिर जीनत दी। ये चरागम भी किया है, ये कपड़ों को भी सेट किया है। तो अब मतलब ये होता है कि पहले की जो पोजीशन है उसको फ्रेश करने का नाम जीनत है। तो क्या कहना उस हस्ती का जो अली जैसे फ्रेश को भी फ्रेश कर दे। अल्लाह सैयदा ज़ैनब वो हस्ती हैं कि जो ज़ैनो अब है। तारीख़ आलम व आदम में आप ज़रा गौर अगर कर लें तो कमाल ज़न के लिए, खातून की अफजलियत के लिए मेयार जो मशहूर हैं वो 3 हैं: अच्छी बेटी, अच्छी माँ, अच्छी बीवी। साबिक़ा उम्मतों में एक कमी ये रही कि किसी में ये 3 एक जगह इकट्ठे नहीं हुए। हव्वा अच्छी ज़ौजा हैं, अच्छी माँ भी हैं, बेटी नहीं। आसिया अच्छी बेटी हैं, अच्छी ज़ौजा हैं, माँ नहीं। मरियम अच्छी माँ हैं, अच्छी बेटी हैं, ज़ौजा नहीं। ये अगर इकट्ठे हुए तो मादर हसनैन में, ज़ौजा अमीरुल मोमिनीन में, लख्ते जिगर रसूल में, ये बीबी फातिमा में तीनों इकट्ठे हो गए। मगर एक और मेयार है कमाल ज़न का जो बीबी से नहीं समझा जा रहा था, वो है अच्छी बहन। क्योंकि भाई मर गए थे बचपन में, तो उस आखिरी कमाल की खातिर अल्लाह ने ज़ैनब को पैदा किया।
मौला सलामत रखे आप। तो क्योंकि सैयदा ज़ैनब पे आके तकमील हो गई मरातिब ज़न की, अब कोई चीज रही नहीं, इसीलिए तारीख आलम व आदम में सानिय ज़हरा तो है, सानिय ज़ैनब कोई नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के लिए तो कम से कम सैकड़ों मजालिस चाहिए, सैकड़ों। मैं जब तालिब इल्म था तो मैंने 159 किताब पढ़ी थी बीबी ज़ैनब पर। तालिब इल्मी के ज़माने में आप कितनी पढ़ ली होंगी वो तो हिसाब ही नहीं। 159 उस वक्त पढ़ी थी और हर साहिब किताब ने इंक्लूडिंग शरीयती के ये लिखा था, हक ये है कि हक ज़ैनब अदा नहीं हुआ। ये कमाल है। बल्कि मैं अगर खुलासा करूं शाबान का इन जुमलों से कि शाबान में भाई की भी ईद है, भाई की भी विलादत है, बहन की भी विलादत है, और इन दो भाई बहन ने इस्लाम पर ऐसा एहसान किया है कि इस्लाम का माजी बचाया हुसैन ने, मुस्तकबिल बचा गई सैयदा ज़ैनब। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यही वजह है कि जो जहां का फाते हो उसी शहर में दफन होता। जिस शहर का कोई फाते हो, फतह करे, दफन वो उसी शहर में होता। हुजूर ने फतह किया था मदीना, पैदा मक्के में हुए थे, दफन वहां हुए जहां फतह किया। अली ने फतह किया था कूफा, दफन हुए कूफा में। हुसैन ने फतह की थी करबला, दफन हुए करबला में। ज़ैनब ने शाम फतह की थी, शाम में दफन। मैं तकाबुल का तो बिल्कुल कायल नहीं, मगर एक जुमला तो जरूर कहूंगा कि एक रोज मैं खड़ा था शाम में, जब शाम आबाद था, अल्लाह फिर और आबाद कर दे। तो सुबह को मैं पैदल जाता था बाजार शाम उबूर करके बीबी सकीना के रोजे पर। तो मैं जा रहा था रास्ते में, तो जब ज़ियारत कर चुका बीबी सकीना के रोजे की, तो मैंने नाश्ता करना था। एक नानवाई की दुकान थी, तनूर था, वहाँ मैं रुका और मैंने उस बंदे से ऐसे पूछ लिया कि आया आप औलाद यजीद हैं? उस बंदे से, क्योंकि वही यजीद भी था। तो वो पहले तो अपने वो तमाम जो औजार थे रख के बाहर निकल आया और कहता है कि शेख तूने मेरी सुबह मनहूस कर दी। इसमें कोई शक नहीं कि हूं मैं भी यजीद की औलाद। मैं हैरान तेरे ऊपर हूं कि तूने मुझे कैसे पहचाना है। किसी ने आज तक मुझे यजीद ज़्यादा नहीं कहा, तो ये तूने कैसे पहचान लिया? मैंने कहा मेरे तो जहन में ऐसी बात आई कि कसरे यजीद के पास एक अवन है, तो इस अवन में हो सकता है यजीद का बेटा खड़ा हो जो तंदूर पे रोटी लगा रहा है। तो उसने एक बात कह के मुझे हैरान कर दिया। उसने कहा या शेख इन्नी मिन अबना यजीद, हूँ तो मैं यजीद की औलाद से। अना अलअनो जद्दी यजीद सबाहन व मसा। ये हाथ में तस्बीह देख रहे हो? मैंने कहा हाँ। कहा ये तस्बीह मैं अपने जद यजीद पर लानत की पढ़ता हूँ, सुबह के वक्त भी शाम के वक्त। तो मैंने उस वक्त रुख किया नजफ का। मैंने कहा मौला मैं तकाबुल का बिल्कुल कायल नहीं हूं, ईसाई अदब ना हो, मगर एक बात तो कहूंगा, यही शाम था जो आपसे जंगों के बावजूद फतह ना हुआ, आपकी बेटी ने 2 खुतबों से फतह कर लिया। यह है ज़ैनब का। तो एक तो खुशी ये है इस महीने में, आज शब है एग्जैक्ट, आज आगाज शाबान हो गया है, पहली शब है आज, शाबान की पहली शब है। और दूसरी खुशी जो इस मुकद्दस महीने में है, जिससे हुजूर ने कहा ये मेरा महीना, किसी और को नहीं, रबीउल अव्वल को नहीं कहा मेरा महीना। जरा गौर करें आप, इस महीने का क्या कमाल है। अच्छा आज मैं एक बात बताऊंगा, मैं बहुत दूर दूर भी गया हूं, तो माशाल्लाह ये अल कुरान सेंटर के और अल महदी सेंटर के बड़े चर्चे हैं, ये टीवी की वजह से। एक बहन यहाँ से कोई 9 घंटे दूर, एक सिस्टर हमारी खुशाब से हैं, वो रहती हैं, तो मैं उनके यहाँ मिलने गया। तो जैसे मैं उनके घर पहुँचा तो अल महदी टीवी लगा हुआ था,
तो उन्होंने कहा कि कभी भाई हमारे लिए भी दुआ कर दिया करें। तो आज मैंने वादा किया था कि आज ज़रूर दुआ करूँगा। तो मैं अपनी बहन है, उनका नाम फरहत है, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ। और एक मियाँ सफदर अली हैं जो उनके शौहर हैं, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। सैयद सफदर अली, अल्लाह ताला इनको आबाद व शाद रखे और उनके बच्चों को भी आबाद व शाद रखे। और ज़ाहिर है कि रफ़त मिर्ज़ा साहब, सुहेल मिर्ज़ा, सलीम मिर्ज़ा, डॉक्टर अंदलीब, नौरीन, इनके लिए भी दुआ करता हूँ जिन्होंने आज तबर्रुक का एहतमाम किया है। और उस्ताद असगर हुसैन के लिए दुआ गो हूँ कि जो खुसूसी तौर पर तशरीफ़ लाएँ, वर्जीनिया से आ रहे हैं, वर्जीनिया से यहाँ पहुँचे, अल्लाह ताला इनको अजर दे, इनको सेहत दे, इनकी बेगम को भी अल्लाह सेहत दे। इसी तरीके से मैं कामिल लखानी के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने आगाज़ किया हदीस शरीफ के साथ से, पैतन पाक के सदक़े में, बीबी ज़ैनब के सदक़े में, शाबान के सदक़े में इनके रिज़्क़ माल में बरकत हो। सैयद असद अली शाह साहब नकवी को अल्लाह ताला बहुत ही इज़्ज़त दे, बहुत रिज़्क़ दे। मंजूर मियाँ साहब बेचारे खुद गाड़ी चला के न्यू जर्सी से आए हैं। और हमारे मीसम के भाई भी, वकार आबिद के घर वाले, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे। सैयद रियाज़ हुसैन शाह साहब रिजवी तशरीफ़ लाए हैं, सैयद वकार हुसैन शाह साहब नकवी तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह ताला वकार नकवी साहब को भी ज़िंदा व सलामत रखे। मलिक नईम भी हैं मौजूद, अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अल्लाह मेरी भी हवाइज पूरी करे। मैं सब के लिए दुआ करता हूँ, ख़ास तौर पे वो मेरी बहनें, अभी मैसेज आया है, एक मुनज़्ज़ा खानुम है हमारी बहन, उन्होंने भी दुआ के लिए ख़ास कहा है, अल्लाह ताला उनकी हर हाजत पूरी करे। जी हाँ, बहन आबदा हुसैन और खुरम नकवी तो ख़ास तौर पर बहुत ही अज़ीज़ भी हैं, अल्लाह ताला इनको बहुत सलामत रखे। ख़ास तौर पे इन्होंने वेलकम कहा जब जश्न का सुना, हमने सोचा कि जश्न हो जाए 6 हस्तियों का, एक हस्ती का जिक्र तो हो गया मुकम्मल, यानी मुकम्मल तो खैर नहीं हो सकता, जो करना चाहते थे। अब आइए दूसरी हस्ती। इस महीने में जो दूसरी हस्ती आई उसने तो काया ही पलट दी। दूसरी हस्ती का नाम है हुसैन, और उनकी ये मैं पिछले साल की बात अर्ज कर रहा हूँ। पिछले साल एक जश्न हुआ था न्यूयॉर्क में, और एक हमारे भाई हैं जो बहुत बड़े अमीर आदमी हैं, अहले सुन्नत हैं, तो इत्तेफाक से वो आए हुए थे उस जश्न में। तो कल शाम को मैं गुजरा उनके स्टोर से, बहुत बड़े स्टोर हैं उनके, तो इत्तेफाक से वो खड़े थे, मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी, पैसे भी नहीं लिए उन्होंने बेचारों ने, और उन्होंने एक जुमला भी कहा कि पिछले साल आपके एक जुमले से मैंने शियत कबूल की थी, आपसे तो मेरी मुलाकात हुई नहीं पूरा साल। और वो जुमला ये था, जुमला सुन लीजिए जो मैंने जुमला कहा था। मैंने कहा हुसैन उस हस्ती का नाम है जो अर्श से ठुकराए गए हो, हुसैन उन्हें गले लगा लेते। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है? शाह जी, जो अर्श के ठुकराए हुए, यानी जिनके मुकद्दर में कुछ ना हो, हुसैन सब कुछ करा देते। जिनके मुकद्दर में जहन्नम हो, हुसैन वो कन्वर्टर है, उनके मुकद्दर को जन्नत बना देते। समझे रहा हुसैन का मकाम ये हुसैन इब्ने अली की इन्वेस्टमेंट का मुकाबला तो कोई कर ही नहीं सकता। जब हुसैन इब्ने अली पैदा हुए तो अल्लाह ने जहन्नम को गुलजार कर दिया, जितने जहन्नम में जल रहे थे सबको ब्रेक दे दी, और दरोगा जहन्नम से कहा आग को रोशन न करना जब तक मैं न कहूं। कहा क्यों? इसलिए इरशाद रब्बुल इज्जत हुआ, इसलिए कि हुसैन आ गए। तो गोया कुदरत का तरीका यह है, जहां हुसैन आ जाए वहां जहन्नम नहीं होती। अब मजलिस वालों को जहन्नम ही ना कहना, जहां हुसैन आ जाए वहां जहन्नम नहीं है। अल्लाह अकबर। तो आप जरा मुलाजा फरमाएं, हुसैन इब्ने अली जब आए तो आतिश नार गुलजार हो गए, आतिश जहन्नम सर्द हो गई। अच्छा, जहन्नम में जल कौन रहे थे? हुसैन का कोई चाहने वाला तो था नहीं, हुसैन के चाहने वाले तो अब पैदा होंगे। तो जल कौन रहे थे? अल्लाह के दुश्मन जल रहे थे ना। तो हुसैन की आफाकियत तो ये है, जो अल्लाह के दुश्मनों को जहन्नम से बचा ले उसे हुसैन कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह है हुसैन इब्ने अली के खाने नियाज से आप मांगे, आपके लिए मैं भी मांगता हूं, आप मेरे लिए भी मांगे। हुसैन के सदक़े में, हुसैन का सदका तो अल्लाह रद्द करता ही नहीं। ये हो गई दूसरी खुशी।
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में बानियाने जश्न को, शिरकत कुनिंदगान को जो टीवी पे देख सुन रहे हैं, अल्लाह जज़ाए खैर मरहमत फरमाए और अल्लाह सारी हाजतों को पूरा करे। अब आ जाइए तीसरी खुशी। तीसरी खुशी उस बीबी को मिली कि जिस बीबी ने ख्वाब देखा कि मैंने ख्वाब देखा है मेरी एक हथेली पे चांद है, दूसरी पे 3 सितारे हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। कोई समझे हैं या नहीं? अब्बास की मां ने चांद के पैदा होने से पहले चांद देखा। अल्लाह अकबर। आप कहते हैं ना अभी तो चांद की बर्थ नहीं हुई तो विजिबल नहीं होगा, तो ये मेरे और आपके लिए है। कमरे बनी हाशिम की मां ने कमरे बनी हाशिम को विलादत से पहले देखा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये उनकी खुशी है। और याद रखिएगा ये खुशी यूं भी मुनफरिद है कि हुसैन इब्ने अली तो वो हैं कि जिनको 4 मासूमीन ने झुलाया है। रसूल ने झूला झुलाया, बतूल ने झूला झुलाया, मौला अली ने, मौला हसन ने, और बल्कि 5 कहूं जिब्रील ने भी। जिब्रील में तो ये 5 ने। तो जिसके झूले को नबी हो, अली हो, बतूल हो, हसन हो, जिब्रील झुलाए उसे हुसैन कहते हैं। जिसके झूले को हुसैन झुलाए उसे अब्बास कहते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह, अल्लाह अकबर अल्लाह। अच्छा, एक बात जो दूसरी खुशी है ना, दूसरी उसमें एक इनफरादियत भी है, वो भी सुन लीजिए। 2 मासूम हमारे ऐसे हैं, 2 14 में से 2 जिन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ में अपना नंबर छोड़ा। तवज्जो रखिएगा, डेट ऑफ बर्थ में उन्होंने अपना नंबर छोड़ा है क्योंकि इमाम है तीसरे, शाबान भी है 3। अल्लाह अकबर अल्लाह, ताकि कोई भूले ना। इमाम भी 7वें हैं, 7 सफर को विलादत है मूसा इब्ने जाफर की। इमाम भी तीसरे हैं, हुसैन इब्ने अली की विलादत 3 शाबान को। ताकि डेट ऑफ बर्थ से इमामत का नंबर पता चलता रहे। मैं एक जुमला कहूंगा, हो सकता है समझ जाए, अगर समझ गए तो दुआएं देते जाएंगे। देखिए, बर्थ इंसान के हाथ में थोड़ी होती है, कंट्रोल में तो नहीं होती ना। तो फिर कहने दीजिए शाबान में आने वाला, 3 को आने वाला अपनी बर्थ का भी कंट्रोल रखता है कि कब आए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जो अबुल फजल हैं सरकार गाजी, उनके बारे में तो जाहिर है कि फजाइल व मनाकिब के दरिया और समंदर है। एक साहब हैं, उन्होंने किताब लिखी है असरारुल अब्बासिया। क्या किताब लिखी है उन्होंने? अब्बास के सीक्रेट्स जो दुनिया को नहीं पता, उन्होंने वो लिखे। सैयद अली हैदर हाशमी ने सीक्रेट्स लिखे हैं जो अभी तक लोगों को नहीं मालूम कि अब्बास क्या है, वो उन्होंने लिखे हैं। तो मैं ज़रा डिटेल में तो जा नहीं सकता, वक्त नहीं है, बिल्कुल सुर्खियों के तौर पे गुजरना है। एक शेर है, सिर्फ एक शेर, वो मैं पढ़ूंगा और वही इस तीसरी खुशी के लिए काफ़ी हो जाएगा। एक शेर सिर्फ, और वो शेर ये है कि एक शायर हैं बहुत बड़े अरब के, जैसे हमारे इकबाल हैं, सबसे बड़े अल्लामा इकबाल जैसे सबसे बड़े शायर अरब के। उन्होंने एक मिसरा लिखा और लिखते हैं कि मैंने ये लिखा, फरमाते मैंने लिखा कि आशूरा यौमुन अबुल फाजल, यौमुन अबुल फाजल इस्तजारा बेहिल हुदा। इतना क़यामत का दिन था, आशूर का दिन, कि हुसैन इब्ने अली ने पनाह ली अबुल फजल से। जरा समझना, यानी पनाह अब्बास में हुसैन आए। फिर ये सोच के सो गए कि जसारत हो गई, मुझसे जसारत हो गई। मासूम इमाम को मैंने
अबुल फजल के पनाह के साए में कह दिया। मुझसे जसारत हो गई, रोते रोते सो गए। आलम रोया में हुसैन इब्ने अली आए ख्वाब में। फरमाते शायर दूसरा मिसरा क्यों नहीं लिखा? कहा सरकार आपसे हया आ गई। सरकार फरमाते हैं तुम्हारी सारी शायरी में हमें मिसरा तो यही पसंद आया। अल्लाह अकबर अल्लाह। यह है अब्बास। अल्लाह अकबर। मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि जिस अब्बास के अलम के नीचे हुसैन पनाह लेते हैं, गुलामान हुसैन कनीजान हुसैन को आज पनाह मिल जाए। तो कहा दूसरा मिसरा उठ के लिख देना। शायर ने कहा सरकार मैं फिर भी नहीं लिखूंगा, मैं जुर्रत नहीं करूंगा। तो आपने कहा कि मैं कहूं। कितना अजीम शायर होगा वो कि एक मिसरा वो कहे, दूसरा हुसैन इब्ने अली कहे। कहा सरकार आप कहें, कहा लिख लो। मैं कह रहा हूं लिख लो, मैं कह रहा हूं याद करके लिख लेना। ठीक है फरमाइए। कहा कि इसलिए मैंने अब्बास से पनाह मांगी। व शम्सो बेक़दरिल उजाज लिसामुहा, इसलिए कि आशूर के दिन गर्द इतनी थी कि दिन रात बन गया था, तो रात में चांद ही से तो पनाह मांगी जाती है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मौला सलामत। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। हमारे भाई ज़ैनुल साहब को भी अल्लाह ताला इनकी तौफीक़ात आलिया में भी इजाफा फरमाए। तो आप ज़रा मुलाज़ा फरमाते चलें कि ये जो मंजिल फ़िक्र है यहाँ पर, ये तीसरी खुशी है। चौथी खुशी जो अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ, वो 1400 साल हो गए। 1400 साल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पैदा हुए। मैं ज़ैदी सादात से कहूँगा कि वो एक बड़ी खुशी मनाएं। ज़ैदी, हुसैनी, वास्ती, बाक़री, आबिदी, साजिदी, जो सादात किराम हैं, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हैं, उन्हें चाहिए कि बहुत बड़ी खुशी इस साल मनाएं। सेपरेट जश्न मनाएं, सेपरेट 1400 साला जश्न विलादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। जो मैं जाहिर है कि इस चौथी खुशी के लिए जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि इन इमाम को ये एजाज़ हासिल है। इसे ज़रा तवज्जो से सुन लीजिए। इनको ये एजाज़ हासिल है कि किसी भी और इमाम को आदम आले मोहम्मद नहीं कहा गया। आदम आले मोहम्मद ये, किसी और इमाम को नूह अहले बैत भी नहीं कहा गया। ये तो आपने सुना है ना, मसल व अहले बैती, मेरे अहले बैत की मिसाल का सफीना थे नूह, मन रखे बहा नजा व मन तखल्लफ अनहा गरका व हवा। मेरे अहले बैत की मिसाल है किश्ती नूह की तरह। ये नहीं बताया कि ना खुदा कौन है, ना खुदा का नाम ज़ैनुल आबिदीन। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। यह है इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक तरफ खुतबों से कूफा और शाम को फतह किया, दूसरी तरफ दुआओं से रब्ते खालिक व मखलूक सिखाया, तीसरी तरफ हुकूक से पूरे निज़ाम अदल को कायम किया। जैसे चार्ट हुकूक का यूनाइटेड नेशन में आज जो लगा हुआ है, आप जाके अंदर देख लीजिए यूनाइटेड नेशन में, उसमें लिखा हुआ है कि ये चार्ट हमने अली इब्न हुसैन से हासिल किया। समझ रहे हैं? ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की चौथी खुशी। पांचवी जो खुशी है वो हजरत कासिम अलैहिस्सलाम की। अगर मैं ये जुमला कहूं कि करबला पंजतन की जंग थी खानदान यजीद के खिलाफ, तो पंजतन को करबला में होना चाहिए।
तो वो जो 5 के 5 हैं जिन्होंने जंग लड़ी है वो पैदा हुए हैं शाबान में। जरा समझे, वो 5 के 5 शाबान के अंदर है। जैसे सईदा ज़ैनब, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कासिम अलैहिस्सलाम और अली अकबर अलैहिस्सलाम। तो 5 कैसे हुए? 5 होने चाहिए करबला में, 5 का निसाब होना चाहिए। रसूल होने चाहिए, बतूल होनी चाहिए, अली होने चाहिए, हसन होने चाहिए, हुसैन तो है। अब वो 4 कहां है? हुसैन तो मौजूद है, अब वो 4 कहां है? तो जुमले की कदर करें, वो 5 के 5 हस्तियां करबला वाली आई शाबान में। अली अकबर आए रसूल बनकर, तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। अब्बास आए अली बनकर, ज़ैनब आई फातिमा बनके, कासिम आए हसन बनके। ये है जंग। ऐसा जी, मौला सलामत। अब आपको अहमियत का पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये शाबान कितना इंपॉर्टेंट है। सारे करबला वालों का ये महीना है और जो आखिरी इमाम है वो भी मुंतकिम करबला, तो गोया सारे करबला वाले शाबान में आए। हजरत कासिम आए इमाम हसन की शबी बनकर, कासिम। और बस एक जुमला और सुन लें और धीरे धीरे आपकी जहमत तमाम हो जाए। वो जुमला ये है कि मैंने अर्ज किया कि ये जो शाबान का महीना है ये रसूल का महीना। रबीउल अव्वल में हुजूर आए हैं, सफर में हुजूर गए हैं। न रबीउल अव्वल को हुजूर ने कहा मेरा महीना है, रबीउल अव्वल में हिजरत भी हुई है, यकम रबीउल अव्वल को हिजरत हुई है। हुजूर ने नहीं कहा कि ये मेरा महीना, हालांकि हिजरत हुई है, बच गए हैं, नई जिंदगी मिली है। ना आने वाले महीने को उसी में आए भी हैं, उसी में हिजरत भी है। इसे अपना महीना नहीं कह रहे, न जाने वाले महीने को अपना कहा। ये शाबान में क्या खुसूसियत है कि कहते हैं शाबान मेरा महीना है? तो एक जुमला कहूंगा, अगर समझ गए तो आज तारीख रकम हो जाएगी। यहां पर हुजूर ने अपने आने जाने वाले महीने को अपना महीना नहीं कहा। तो जुमला सुने, जिसमें रसूल आए, रसूल उसको अपना नहीं कहते। जिसमें शबी है रसूल आए, उस शाबान को रसूल अपना महीना कह रहे हैं। अब आपको अंदाजा हुआ कि शाबान में 6 का जिक्र अब तक हमने कर लिया। एक आएगी शबे बराअत, वो इंशाल्लाह जिस शब को होगी, यानी वो जुमेरात को शबे जुमा जो होगी, उस अगली, ये अगली, उससे भी अगली, या अब आज से 14 दिन बाद शबे जुमा में वो होगी शबे बराअत। एक तो उसको भी जरा तलफ़ुज़ गलत किया जाता है हमारे यहाँ, क्योंकि ओरिजिन हमारा अरबी नहीं है, तो हम अल्फाज को बिगाड़ देते हैं। हमने शब बारात कर दिया, शब बारात। ये शब बारात नहीं है, शब बारात गलत है। इसका नाम है शबे बराअत। बराअत बरी से, बरी युज़्मा होना। बारात का मतलब है दूरी। ये शब वो है बराअतुम मिनन नार, जो इस शब में इबादत कर ले अल्लाह उसे जहन्नम से दूर लिख देता। शब बारात के जो आमाल हैं इंशाअल्लाह आप बजा लाएंगे, मौलाना वसीम अब्बास आएंगे इंशाअल्लाह और जश्न भी पढ़ेंगे। तो आप उस शब में आमाल जो बजा लाएंगे वो आमाल बराअत करा देंगे, बराअत दूरी करा देंगे जहन्नम से। वो शब तवल्लुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी है, उसी
शहर में आला हजरत नामूस दहर इमामुल असर नरजिस के लाल अस्करी के लाल तशरीफ लाए हैं। वो अरीज़ों वाली ईद है। हम पहले समझते थे कि ये पटाखों वाली ईद है, बाद में हमें समझ आया कि पटाखों वाली नहीं, ये अरीज़ों वाली ईद है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी अपना एक शौक है पटाखों वाला, कोई गुनाह नहीं है, इसराफ ना हो, खतरा ना हो जलने वलने का, तो कोई हरी नहीं है, उसमें भी कोई कबात नहीं। मगर असल तो अपने मरूमीन को भी याद करना होता है। ये आज से, बल्कि आज से न्याज शुरू हो जाती है, आज शब से न्याज शुरू हो गई है। आज से ये शाबान की न्याज मरहुमीन के लिए ख़ास न्याज होती है। तो वो 7वीं ईद वो हो जाएगी शब बारात वाली, 6 तो गिनवा दी ना, और 8वीं हो जाएगी दिन जो 15 का है, वो इमाम ज़माना की विलादत का दिन है। तो जितने दरवाजे हैं जन्नत के, उतनी ईदें हैं शाबान की। समझे अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो आप जरा मुलाज़ा फरमाते चलें कि ये बस तकरीर यहाँ पर इख्तिताम पजीर हो रही है, आधा घंटा होने वाला है, ताकि मैं आपके और लंगर के दरमियान भी फासला न बनूं। जी हाँ, हमारे साजिद शाह साहब भी आए, अल्लाह ताला इनको भी सलामत रखे, इनकी बेगम साहिबा को सेहत दे। हाजी मलिक मोहम्मद अख्तर साहब भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत कुली दे, उनकी बेगम साहिबा को भी अल्लाह सेहत दे। और तमाम हजरात व ख़वातीन जो दूर नज़दीक से आए हैं, हमारे अब्बास शाह साहब के फर्जंद भी हैं, ये हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शान रज़ा के भांजे भी तशरीफ़ फरमाए, बच्चे भी यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला सब बच्चों, बड़ों को, बुजुर्गों को, ख़वातीन को, जो बीवियाँ बच्चियाँ आई हुई हैं आज इतनी बड़ी ईदों के इस जश्न के सदक़े में, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, मंजूरीन को शिफायाब फरमाए, मकरूज़ों के कर्ज़ अदा फरमाए। अल्लाह ताला हर दुख तकलीफ़ से आप तमाम हज़रात व ख़वातीन को महफूज व मसून फरमाए। माशाअल्लाह बहुत कबूल, जश्न कबूल है अल्लाह के हुक्म से। काफ़ी तादाद में मजमा आ गया है, और इंशाअल्लाह ज़िंदगी है तो अगले थर्सडे को भी बशर्ते ज़िंदगी ज़ैदियों की तरफ से 1400 साला जश्न होगा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। हम चाहते हैं कि इमाम का टॉप का जश्न होना चाहिए, क्योंकि 1400 साल हो गए। तो बस तकरीर यहाँ पर तमाम हो रही है, इस उम्मीद के साथ कि आपने जो मैंने अर्ज़ किया आप हजरात की खिदमत में, इसे तवज्जो से सुने। इसमें शाबान के रोज़ों का भी बड़ा सवाब है, शाबान की नमाजें भी हैं, उनको भी, बल्कि जिन्होंने कुरान जो नहीं पढ़ते वो कुरान शुरू कर दें, पूरा रमज़ान के आने से पहले एक ख़त्म कुरान कर लें। इसमें मरहूमीन का भी ख़ास जिक्र है इस शाबान के अंदर। आपके मरहूमीन आते हैं आपसे पूछने के लिए कि हमारा हिस्सा कहाँ है, हमारा हक़ कहाँ है। तो इस शाबान के अंदर आज से ही अहद कर लें कि शाबान में एक ख़त्म कुरान करेंगे, शाबान के अंदर नमाज़ें पढ़ेंगे, शाबान के अंदर अपनी इन हस्तियों को याद करेंगे। 7 हस्तियाँ जिनका मैंने जिक्र किया है, 7 हस्तियाँ हैं कि जो पैदा हुई हैं, और 8वीं ईद शब बराअत की ईद है। अल्लाह ताला इस शाबान के महीने में हमारी दुआओं को भी कबूल करे, तौबा को भी कबूल करे, मरहूमीन की भी मग़फ़िरत हो, हाज़रीन जितने भी तशरीफ़ फरमा है सब की हाजात शरइया पूरी हों, और हम मौरिद लुत्फ़ व करम हज़रत हुज्जत इब्नुल हसन सलामुल्लाह अलैह करार पाएँ। बस तकरीर तमाम हो गई, इससे आगे मैं नहीं जाऊँगा। खुलासा करूँ मैं, आज मैंने हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास सलामुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह, और इसी तरीक़े से हज़रत क़ासिम सलामुल्लाह अलैह, हज़रत अली अकबर सलामुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम ज़माना सलामुल्लाह अलैह अज्जल अल्लाह ताला फ़रजहु शरीफ, और शब मुबारक के बराअत का जिक्र किया। 8 तज़किरे मैंने किए। आखिरी बात कह के मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपने हुजूर के नाम आपने, हुजूर की विलादत है 17 को, आपने हुजूर के नाम कभी अरीज़ा नहीं लिखा। बस ये तकरीर ख़त्म हो रही है, बाकी इसके बाद मौलाना वसीम अब्बास पढ़ेंगे। हुजूर के नाम 13 रजब को आपने कभी अरीज़ा लिखा? कभी आपने 20 जमादी उसानी को अरीज़ा लिखा है? कभी आपने 15 रमज़ान को लिखा है? नहीं लिखा ना। 3 शाबान को कभी लिखा है? 5 शाबान को कभी लिखा है? 17 रबीउल को सादिक आले मोहम्मद के दिन 7 सफ़र को कभी लिखा है? नहीं लिखा ना। ज़िकात में कभी लिखा है?
जो जितने आइम्मा आए हैं उनके अयाम विलादत में कभी आपने नहीं लिखा, न रसूल के लिए, न आदम से लेके ईसा तक के लिए कोई अरीजा लिखा है। अरीजा लिखा तो जा सकता है, आदम के लिए भी लिख सकते हैं, मगर किसी ने लिखा नहीं। तो ये अरीजा सिर्फ इमाम जमाना के नाम क्यों है? इसलिए कि अल्लाह ने इमाम जमाना को अप्रूवल दी है हर नबी और इमाम के बिहाफ पर अरीजा कबूल करने की भी और अप्रूवल की भी, उसके एक्सेप्टेंस की, इसलिए अरीजा है इमाम। या महमूद बहक़ मोहम्मद, या आला बहक़ अली, या फातिरो बहक़ फातिमा, या मुहसिनो बहक़ हसन, या कदीम अल एहसान बहक़ हुसैन व ज़ुर्रियत अल हुसैन। या अल्लाह तुझे अपनी इज्जत और जलाल का वास्ता, इन 7 हस्तियों का वास्ता जो शाबान में आई, और शब बराअत का वास्ता जो शाबान में, आज की शब बड़ी शब है, इस शब का वास्ता हमारे गुनाहों को माफ कर, हमारे माँ बाप के गुनाहों को माफ कर, हमारे मरहुमीन के दर्जात बुलंद फरमा, हमारे रिज़्क़ को माल में बरकत अता फरमा, बानियाने जश्न की खिदमत को कबूल कर, पढ़ने सुनने वालों की हाजिरी को कबूल फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है अपनी इज्जत व जलाल का हज व ज़ियारात हमें नसीब फरमा। अव्वल वक्त में नमाज का हमें पाबंद बना, डेली कुरान पढ़ने का हमें पाबंद बना। या अल्लाह इमाम ज़माना की फ़ौज में हमारा नाम दर्ज फरमा, मुंतक़िमीन खून हुसैन में हमारा नाम दर्ज फरमा। मौला अली की विलायत के चिराग हमारे घरों में जलते रहे, अज़ादारी हुसैन के चिराग हमारी जिंदगियों में जलते रहे, हमारी नस्लों में कोई दुश्मन आज़ाद दुश्मन मौला पैदा न करना। या अल्लाह हम सबको मौला और हमारे सब मौलाओं की जो खिदमत है करने की तौफीक अता कर, उनके मैसेज को कन्वे करने की तौफीक अता फरमा, आपस में मोहब्बत और ख़ुव्वत से रहने की तौफीक अता फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा, अमन के अलम्बरदार को जल्द भेज दे, शाम को बहरैन को आज़ाद फरमा, ममलिकत खुदादात से दहशत गर्दी को ख़त्म फरमा, नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले तमाम मोमिनीन मोमिनात के घरों की हिफाजत फरमा। जो मुसलमानों पर कड़ा वक्त है अमरीका में, उस कड़े वक्त में हमें कामयाब व कामरान फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत शुक्रिया। कल नमाज जुमा की इमामत मौलाना सखावत हुसैन साहब करवाएंगे। 1 बजे नमाज का टाइम है। आप सब हज़रात से दरख्वास्त है कि तशरीफ़ लाएँ। और 11 तारीख को थर्सडे को शब बारात है, तो उसमें भी सब हज़रात तशरीफ़ लाएँ। मैं आपको टेक्स्ट सबको भेज दूँगा। शब जुमा ज़ियारत वारिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका रब्बना रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका वारिस आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस मूसा कलीमिल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस ईसा रूहिल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस अली अमीरुल मोमिनीन वलील्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न मुहम्मदिल मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैका इब्न अली अल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अलैका इब्न खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अलैका सारल्लाह व इब्न सारे व रितल मौतूर, अशहदु अन्नका क़द अक़मतुस सलाह व आतैतुज़ ज़काह व अमरता बिल मारूफ़ व नहैता अनिल मुनकर व अताअल्लाह व रसूलहु हत्ता अताकल यकीन। फ़लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका वलानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका वलानल्लाहु उम्मतन समिअत बिज़ालिका फ़रज़ियत बिह। या मौलाया या अबा अब्दुल्लाह, अशहदु अन्नका कुन्ता नूरन फ़िल इस्लाम शामिका वल अरहामिल मुतहहरा लम तुनज्जिसकल जाहिलियतु बिअनजासिहा व लम तुलबिसका मिन मुतलहिमाति सियाबिहा व अशहदु अन्नका मिन दाइमिद्दीन व अरकानिल मुमिनीन व अशहदु अन्नकल इमामुल बर्रुत तक़ियुर रज़ियुज़ ज़कियुल हादियुल महदी वशहदु अन्नल अइम्मत मिन वल्दिका व कलिमतुत तक़वा व अलामल हुदा वल वतुल हुस्का वल हुज्जतु अला अहलिद दुनिया वशहदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबियाअहु व रुसुलहु इन्नी बिकुम मुमिनुन बिया बिकुम मुक़िन बिशराइ दीनी व ख़वातीमी अमली व क़ल्बी लिक़ल्बिकुम सिल्म व अमरी लिअमरिकुम मुत्तबि सल्लवातुल्लाहि अलैकुम व अला अरवाहिकुम व अला अजसादिकुम व अला अजसामिकुम व अला शाहिदिकुम व अला गाइबिकुम व अला ज़ाहिरिकुम व अला बातिनिकुम
ज़ात अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अपना रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना अमी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम अपना अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम अपना हुसैन शहीद, अस्सलाम वालेकुम या शहीद व अपना शहीद, अस्सलाम वालेकुम अय्युल मज़लूम व अपना मज़लूम, लानल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लानल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लानल्लाहु उम्मतन समियत बिज़ालिका फरज़ियत बि ज़ात शुहदा करबला। अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह व अहिब्बा, अस्सलाम वालेकुम या अस्फिया अल्लाह व अविद्दा, अस्सलाम वालेकुम या अंसार दीनिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अंसार रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अंसार अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या अंसार फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम या अंसार अबी मुहम्मद हसन इब्न अली अल वली नासिर अमीन, अस्सलाम वालेकुम या अंसार अबी अब्दुल्लाह बि अबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम व ताबतुल अर्ज़ अल्लती फ़ीहा दुफ़िनतुम व फ़ुज़्तुम फ़ौज़न अज़ीमा फ़या लैतनी कुन्तु मअकुम फ़अफ़ूज़ मअकुम। अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीर अल-मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम अय्युल अब्दुस सालिह अल-मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिह, अशहदु अन्नका क़द जहदता व नसहता व सबरता हत्ता अताकल यकीन, लानल्लाहु ज़ालिमीन लकुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन वल हक़क़हुम बितरकिल जहीम। अस्सलाम वालेकुम मौला इब्न मौला, अस्सलाम वालेकुम करीब अल कुरबा, अस्सलाम वालेकुम सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम साहिबुल असर व ज़मान, अस्सलाम वालेकुम खलीफतुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम शरीकल कुरआन, अस्सलाम वालेकुम इमामुल इंस व जान, अस्सलाम वालेकुम वक्तुल्लाह व अर्ज़, अस्सलाम वालेकुम शरीक अजलल्लाहु ताला फरजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरक, अस्सलाम वालेकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मादिन रिसाला जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।